Heartily welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansar. I'm speaking Stella from the CA Sansar. So today we are going to talk about very interesting topic which is enforcement, investigation and compounding. For that we have our guest is a CA Hiren sir. Thank you so much sir to joining us and also giving your valuable time. Before we further ado, I having the smallest request to all of you to subscribe our YouTube channel and do not forget to like, share and comment. Now sir, I would like to invite you to share the thoughts on the today topic. Thank you, Stella, for giving wonderful opportunities. Uh, Today's topic is ED's role under FEMA in the form of enforcement, investigations, and compounding. Uh, Today, we will go through in-depth knowledge regarding who is the enforcement directorate, what is their roles, responsibilities, how they enforce the working under FEMA and other important laws, how they will conduct investigation, and what is the remedy, whether you can go with compounding or not. So let us start with why FEMA enforcement matters. First question will arise in our mind: why FEMA enforcement? Because FEMA governs the each and every cross-border transactions for preserving India's macroeconomic stabilities. और आपने कई बार सुना होगा ये FAFT compliances, Financial Action Task Force. So to safeguard integrity and nowadays due to more liberalization, to protect the integrity of the nation's macroeconomic stability and all, enforcement is very critical for Foreign Exchange Management Act. So under FEMA, who is the enforcement authority? Foreign Exchange Management Act is there. तो enforcement action का task given to enforcement directorate, and it will under directly Department of Revenue, Ministry of Finance. It is the main agency who entrusted the task for enforcement of FEMA. Reserve Bank of India is also there, plays a very regulatory and supervision role. So basically, these are the two authorities, Enforcement Directorate and Reserve Bank of India, who enforce under FEMA, right? Moving ahead, let's understand what is the actions, functions, powers and roles. हम रूटीन लाइफ में कई बार मीन्स नंबर ऑफ न्यूज आते हैं कि भाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रेटेड सो एंड ऑल लाइक दैट, नेशनल हेराल्ड केस, शारदा स्कैम and many other numbers and thousands of cases where we listen in regular news channel and all like that. Enforcement Directorate has raided so and so group and all like that. So who is Enforcement Directorate? What is the power? तो हिस्ट्री देखा जाए तो इन 1956 एनफोर्समेंट यूनिट की स्थापना की गई थी. अर्लियर इट वाज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फेरा, फॉरेन एक्सचेंज इकोनॉमिक फॉरेन एक्सचेंज यूनिट. देन आफ्टर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इनेक्ट हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ. सो अगेन एनफोर्समेंट टास्क हैज बीन एंट्रस्टेड टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. Now after liberalizations there are number of cases coming, and money laundering and all the activities multifold beyond the jurisdiction and all. So to mitigate such kind of money laundering, terrorist funding and all, government came out with very important law, Prevention of Money Laundering Act. तो अगेन क्या हुआ, उसका एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन किसको दिया? नन अदर देन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, आफ्टर 2014 2016 मेनी फिनेंशियल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम, जो भी ऑफेंडर थे वो मींस फ्लीइंग द कंट्री, बाहर चले जाते थे. तो वो केस में मींस टू कैच ऑल द ऑफेंडर्स, सो दे इनेक्टेड Fugitive Offenders Act in 2018. Again, enforcement task has been assigned to none other than Enforcement Directorate. This is the history. So any FEMA violations, Prevention of Money Laundering Act, Fugitive Offenders Act, all the task has been entrusted to Enforcement Directorate. Now what is their functions, powers and roles? Enforcement Directorate can search, seizure,
confiscate, or issue summons to anyone to gather information, to investigate the case, and to adjudicate the case and impose the penalties and all. This is their prime functions entrusted to them under statute. And Enforcement Directorate is under direct control of Department of Revenue, Ministry of Finance. Very important aspect, आरटीआई की जो एप्लीकेबिलिटी है हम चेक कर लेते हैं. कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो वहां आप आरटीआई करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. हालांकि मैं आपको बता दूं, एक्सेप्ट few informations, even RTI is not applicable to Enforcement Directorate. Another one is very important, statement recorded by ED. ये ED का खौफ क्यों ज्यादा है? Because of the supreme power given to Enforcement Directorate. जनरली मान लीजिए कोई पुलिस का केस है स्टेट लेवल या व्हाटएवर माइट बी, तो वहां पे जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, यू कैन चैलेंज द स्टेटमेंट. बट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मान लीजिए आपको समन्स इश्यू हुआ है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुआ है, तो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज वैलिड एंड एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. दूसरा एस्पेक्ट, रीजन टू बिलीव, सस्पेक्ट, रीजन टू राइटिंग. तो आप गिल्टी है अनलेस यू प्रूव यू आर इनोसेंट. दूसरा, कई बार ऐसा भी हुआ है, कोर्ट ने भी मींस माना है और डायरेक्शंस दिया हुआ है, देयर इज अ क्वेश्चनेबल इन्वेस्टिगेटिव मेथड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ओवररीच ऑफ पावर्स, क्रॉस अथॉरिटी ऑब्जेक्शंस एंड ऑल लाइक दैट. सो होप you got all the information. Who is the Enforcement Directorate, why it is the supreme authority, because all the important acts, Foreign Exchange Management Act, PML Act, Fugitive Offensive Act, all the task has been entrusted to Enforcement Directorate. Now coming to the powers and roles of Enforcement Directorate, after so much issues in confiscation and seizure of assets, ये केस हुआ था Xiaomi टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड का. तो प्रॉब्लम क्या हुआ, जो वायोलेशंस ये जो भी हुआ था वो इन इंडिया हुआ था, असेट थी वो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया थी. तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आउटसाइड इंडिया की भी जो असेट्स थी वो मींस सेज कर दिया. तो वहां पे कोर्ट में मींस स्टेटमेंट हुआ कि भाई क्या इंडिया के आउटसाइड जो प्रॉपर्टी है एनफोर्समेंट अथॉरिटी के पास ये पावर है. सेक्शन 37A के तहत इट इज वैलिड विथ पावर एंट्रस्टेड टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इफ असेट्स हेल्ड आउटसाइड इंडिया इवन दे कैन सेज, नॉट इन इंडिया. सो व्हाट यू हैव टू बियर इन योर माइंड, मान लीजिए आपने कोई भी क्राइम या व्हाटएवर में भी फेमा वायोलेशंस कुछ भी किया है, तो ऐसा नहीं कि आपकी जो भी असेट्स इंडिया में लोकेटेड है वही अटैच हो सकती है, वही सेज हो सकती है, ऐसा नहीं. इफ एनी असेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इट इज आल्सो लायबल. गॉट इट? नाउ कमिंग टू द एग्जांपल ऑफ ईडी स्कैनर. ईडी का जो प्रैक्टिकल होता है तो कहाँ कौन सा एरिया है, मान लीजिए एनआरआईज है और प्रोहिबिटेड सेक्टर्स जो है एक्टिविटीज है वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, डमी एफडीआई इश्यू हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहीं कई इंडियन मनी है, ब्लैक मनी है, वाइट होके मान लीजिए फॉरेन कंट्रीज में चला जाता है और एफडीआई के जरिए यहाँ पे वापस इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता है. फिर ये जो इनबाउंड आउटबाउंड स्ट्रक्चरिंग्स होता है उसमें वायोलेशंस होता है, राउंड ट्रिपिंग ट्रांजैक्शंस होता है अंडर फेमा, तो ये ईडी के रडार में है. फिर अनकवरिंग फ्रॉडुलेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, गेमिंग है, फॉरेन में इमूवेबल प्रॉपर्टीज परचेज कर लेते हैं विदाउट डिस्क्लोजिंग सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड ऑल लाइक दैट. तो ये सब एक्टिविटीज डायरेक्टली ईडी को इनवाइट करती है. फेक एफडीआई करते हैं बाय एनआरआईज, वायोलेशन ऑफ सेक्टरल जो कैप रखा हुआ है इंडस्ट्री वाइज उसका भी वायोलेशंस होता है. आपने मींस सुना होगा आईपीएल केस है, इवन टुडेज मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी ईडी का मींस नोटिस मिला है, समन्स मिला है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है कि भाई आपने फेमा का वायोलेशंस किया है. सो कमिंग टू द एनफोर्समेंट अंडर फेमा, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑफेंसेस? फेमा इज नॉट अ क्रिमिनल लॉ, इट इज सिविल इन नेचर. पहले फेरा था वो वन लाइक क्रिमिनल इन लॉ था, हालांकि ये फेमा
सिविल इन नेचर है. Violations typically involved non-compliance with rules, say foreign exchange, external borrowings, investment abroad, or you are doing FDI but not complied with FDI rules and regulations, not reported, and repatriated export proceeds and all like that. So these all are the violations, offenses under FEMA, which is civil in nature, right? Very important aspect, investigations and adjudication under FEMA. ये 5 स्टेप है. इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, एजुडिकेशन की प्रोसेस क्या है, आज हम प्रैक्टिकल देखते हैं. तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ से होता है? तो सबसे पहले ईडी के पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है. फॉर एग्जांपल एडी कैटेगरी बैंक है जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस रूट करती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कई सारी इंफॉर्मेशन होती है. आपने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किया है, एफडीआई किया है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स रेज किया हुआ है और आपने उसका कंप्लायंस नहीं किया है. तो ये सब जो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है और जो इंटेलिजेंस यूनिट है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और अदर डिपार्टमेंट्स के, तो वहां से सोर्सेज ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिलता है. फिर समन्स इश्यू होता है कि भाई आपने ये सभी ट्रांजैक्शंस जो भी किया है, तो वो सभी ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ऑडिट रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल्स लेके समन्स इश्यू होता है. उसके बाद ये तय होता है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का वायोलेशन हुआ है, तो कौन सा रेगुलेशंस का वायोलेशन हुआ है, रूल्स का वायोलेशन हुआ है. आपने कोई फॉरेन में प्रॉपर्टीज परचेज की है तो सेक्शन 3 प्रैक्टिकली बोलती है कि भाई जो यू कैन नॉट डू एनी फॉरेन ट्रांजैक्शंस विदाउट रूटिंग थ्रू ऑथोराइज्ड पर्संस. आपने कैश में परचेज कर लिया तो ये सब वायोलेशन हो गया. उसके आधार पे ये एक साफ होता है कि आपने जो भी एक्टिविटीज किया है वो इन्वेस्टिगेशन के तौर पे कि भाई आपका वायोलेशन हुआ है. फिर कंप्लेंट फाइल होती है एजुडिकेशन अथॉरिटी को कि भाई सो एंड सो वर्क हैज बीन डन, मींस बेस्ड ऑन सो एंड सो इंफॉर्मेशन, कोरोबोरेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल. एजुडिकेशन अथॉरिटी को कंप्लेंट फाइल होती है. नाउ एजुडिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो एजुडिकेशन प्रोसेस में प्रैक्टिकल क्या होता है? सबसे पहले एजुडिकेशन डिपार्टमेंट मींस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सो कॉज नोटिस इश्यू करते हैं. सो कॉज नोटिस मस्ट कंटेन ऑल द डिफामेशन चार्जेस, एनी वायोलेशंस और एल, मींस दे कैन नॉट say like that you have made so and so violations. They have to mention what is the particular violations, regulations or all like that, and they will provide opportunity of being heard. Without opportunity means they cannot conclude the adjudication proceedings and all. So they will issue summons and आपको summons के अगेंस्ट में प्रेजेंट होना जरूरी है. जो भी इंफॉर्मेशन डिमांड हुई है वो इंफॉर्मेशन सप्लाइड कीजिए. उसके बाद पर्सनल हियरिंग की भी आपको मींस इफ यू डिमांड पर्सनल हियरिंग दे विल ऑफर पर्सनल हियरिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल. आफ्टर पर्सनल हियरिंग डॉक्यूमेंटेशन वो कंफर्म होता है कि भाई आपने कोई वायोलेशन किया है कि नहीं, व्हाट इज द प्रैक्टिकल कंडीशन, लुकिंग टू द फैक्ट्स, आपने अनड्यू गेन कितना डिराइव किया है, वो सभी मामलों को मींस नजर में रखते हुए ये एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स होता है. उसके बाद एजुडिकेशन ऑर्डर होता है. तो एजुडिकेशन ऑर्डर में स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि भाई आपने कौन सा वायोलेशन किया है, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ द पेनल्टीज विल बी इम्पोज्ड, व्हाई पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज्ड, पर्सनल हियरिंग में क्या हुआ, डिस्कशन हुआ, डॉक्यूमेंटेशन क्या हुआ. उसके बाद एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर होता है. तो ऑर्डर में क्या होता है, कई बार वार्निंग इश्यू होती है, कई बार पेनल्टीज भी, जनरल पेनल्टीज 3 टाइम्स है तो पेनल्टीज ऑर्डर इश्यूड होते हैं. तो इस हिसाब से एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स फिनिश होता है और फाइनल ऑर्डर इश्यू होता है. तो एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स में फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, आपने अनड्यू गेन कैसा लिया है, मींस हाउ मच द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस. एक्स पार्टी ऑर्डर भी होता है, मान लीजिए समन्स इश्यू हुआ है और आपने वहां पे प्रेजेंट नहीं किया है. जो भी यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड. कई बार क्या होता है कि भाई आपका प्रोसीजरल वायोलेशन से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का समन्स हुआ, नोटिस रिसीव हुई, तो ये नहीं कि भाई आपको मींस डर जाना है या जो भी है, लेकिन आपके पास एक वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन है. यू कैन यूज कंपाउंडिंग
अल्टरनेटिव ऑफ द एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स। मान लीजिए आपने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किया है, उसका रिपोर्टिंग है, एपीआर फाइल नहीं किया है, यूएएन जनरेशन कंप्लायंस नहीं किया है, फिर एफएलए रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट होती है, आपने नहीं किया है। सो इन दैट केस यू कैन मूव बिफोर एजुडिकेशन ऑर्डर फॉर कंपाउंडिंग ऑफ कंट्रावेंशंस। ये केस में क्या होगा, एजुडिकेशन अथॉरिटी विल गिव स्टे, आरबीआई के पास आपको कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फाइल करना है, और मान लीजिए ये एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई है तो आपको बताना है, आरबीआई विल इश्यू लेटर्स टू द एजुडिकेशन अथॉरिटी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इफ दे हैव एनी ऑब्जेक्शन, इफ दे हैव नो ऑब्जेक्शंस दे विल इश्यू एनओसी। तो ये केस में आप एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स से बच सकते हैं। व्हाट इज द जनरल पेनल्टीज इफ अमाउंट इज क्वांटिफाइबल? से फॉर एग्जांपल आपने 1 CR का ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, ब्रांच ऑफिस ओपन किया, amount is quantifiable, then amount up to the 3 times of the sum involved in violations. If amount is not quantifiable, INR 2 lakh rupees. For continuing of the offense, penalty may be extended to 5,000 for every day of the continuation of the offense. आपने एक्विजिशन ऑफ फॉरेन करेंसी है, सिक्योरिटीज और प्रॉपर्टी अब्रॉड में परचेस की है विदाउट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो उसकी पेनल्टी है अप टू 3 टाइम्स द अमाउंट इन्वॉल्व। ये प्रॉपर्टी का कॉन्फिस्केशन भी हो सकता है, इक्विवेलेंट अमाउंट सिचुएटेड इन इंडिया, जो मैंने पहले बताया कि भाई आपका ऑफेंस हुआ है इंडिया में, तो जो आपकी इंडियन प्रॉपर्टी या तो फॉरेन प्रॉपर्टीज, दोनों के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पावर है अटैचमेंट कॉन्फिस्केशन करने के लिए, imprisonment for a term which may extend 5 years with fine. Now एजुडिकेशन अथॉरिटी का चलो ऑर्डर तो हो गया, लेकिन उसका जो पेनल्टी है ना वो बहुत भयंकर होता है। मान लीजिए ऑर्डर के बाद within 90 days you have to pay adjudication penalties and all. If you have not paid, then enforcement directorate have power for attachment of your bank accounts, movable properties and immovable properties. They can recover all your penalties and enforcement recovery mechanism like recover as area land revenue, right? They can seize movable and immovable property. Even आप वो अरेस्ट वारंट भी इश्यू कर सकती है फॉर रिकवरी ऑफ द एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स। एजुडिकेशन ऑर्डर के बाद ये फाइनल नहीं है कि भाई चलो आपको पेनल्टी पेड करनी ही करनी है, नहीं, आपके पास और भी एक रास्ता है। यू कैन फाइल अपील टू हायर अथॉरिटी against the order issued by adjudication authority within time limits, and also if any pre-deposit required by the authority you have to pay some percentage of penalties. अपील फाइलिंग फीस है, आप अपील फाइल कर सकते हैं। उसके बाद ट्रिब्यूनल है और हाई कोर्ट जो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप फाइट कर सकते हैं। दिस इज द होल प्रैक्टिकल कंडीशंस हाउ दे कैन इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशंस अंडर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हाउ दे विल स्टार्ट एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स एंड ऑल। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स का फेमा और पीएमएल है, दोनों का टास्क एंट्रस्टेड हुआ है एजुडिकेशन अथॉरिटी, नन अदर देन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। लेकिन दोनों में कई बार कई डिफरेंसेस है जो हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं। आज हम सुन लेंगे कि वो दोनों का क्या डिफरेंस है। फेमा में जो एजुडिकेशन हो रहा है ना वो सिविलियन नेचर है, अदर देन इफ एनी नेक्सस हैज बीन प्रूव्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और लाइक दैट। और जो पीएमएलए है इज क्रिमिनल इन नेचर, पीएमएलए क्रिमिनल लॉ है। तो दोनों में ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है एजुडिकेशन का अंडर फेमा आपको कंप्लायंस करवाना, पेनल्टी पेड करके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस का कंप्लायंस करना। हालांकि पीएमएलए में क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अटैचमेंट, कॉन्फिस्केशन एंड ऑल। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस रिया। पीएमएलए में क्या है कि there is a one conditions, mens rea is one of the important for confiscation of property or if you prove say proceeds of crime. फेमा में ऐसा कुछ नहीं है। फेमा में आपने इवन प्रोसीजरल लैप्सेस किया है तो मेंस रिया की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस यू हैव टू कंप्लाई विथ फॉरेन एक्सचेंज लॉ
विथ पेनल्टीज, एजुकेशन पेनल्टीज एंड ऑल। आपके पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है। आपको ये फेमा है ना, वो एक वन काइंड ऑफ कंप्लायंस लॉ है। So this is the adjudication proceedings, enforcement directorate roles, their powers and all. Like after that प्रैक्टिकल कंडीशन ये होती है, मान लीजिए प्रोसीडिंग्स चालू है, मींस जो भी डेथ हुआ है या इंसॉल्वेंसी हुई है, कैन प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू इवन आफ्टर डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पर्संस? यस, कोर्ट ने भी कई बार रूलिंग दे दिया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू इवन इन द केस ऑफ डेथ। सो ऐसा नहीं है लाइक इन अदर लॉज। फिर पहले जो मैंने बताया था आपको, जब समन्स इश्यू होता है तो आपको जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होता है तो मींस साउंड माइंड से, वेरी वेल थॉट अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू गिव all the information to enforcement directorate because statement recorded by enforcement directorate is valid in law। और दूसरा, समन्स इस Yes, sir. another very important aspects, contraventions by companies। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कई बार क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर भी पेनल्टी इंपोज करते हैं। Is there any remedies available for directors, MD or like that? Yes, there is a crystallized position in law। अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि मान लीजिए जब भी वायोलेशन हुआ था तब मेरी मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट ही नहीं थी, मींस सो आई एम नॉट लायबल फॉर सच काइंड ऑफ कंट्रावेंशन, ये केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट विल नॉट पनिश यू। मूविंग अहेड, कंट्रावेंशंस के लिए कई बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलता है कि भाई कंपाउंडिंग के जरिए ये मैटर को फिनिश किया जाए। तो जो सीरियस कंपाउंडिंग का पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी है और कई कंपाउंडिंग का पावर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है, लाइक ट्रांजैक्शन सस्पेक्टेड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और अफेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। और सेक्शन 37 है जो मैंने बोला, असेट्स हेल्ड आउटसाइड इंडिया, ये सभी का पावर्स कंपाउंडिंग का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क रूलिंग, क्या एजुडिकेशन फिनिश होने के बाद आप कंपाउंडिंग में जा सकते हैं? कोर्ट ने अंडरस्टैंडिंग से बताया इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के तहत कि यार एजुडिकेशन के बाद आप कंपाउंडिंग में जाते हो तो ये एजुडिकेशन का कोई मीनिंग ही नहीं रहता है फेमा में। एंड दे डिनाइड द एप्लीकेशंस एंड issued the order that compounding order is full and final and you are not liable to apply for compounding after the adjudication proceedings। Hope you enjoyed the sessions for who is the enforcement directorate, powers, rules and their adjudication proceedings। If you have any questions you can comment। Over to you, Stella। Thanks a lot, sir. Very wonderfully and step by step you explained the overall topic. And thank you so much for giving your valuable time and also joining us, sir. Thank you so much. Thank you very much।